ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، صدر جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، میری لائف میں سب سے پہلا پروگرام، سب سے پہلا جلسہ اسی موہنا چاندپور کالونی جھارکھا میں ہوا تھا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ہی اس گاؤں سے میرے خطاب کا آغاز ہوا، لیکن دوسری طرف مجھے دکھ اس بات کی ہے جو پروگرام مجھے ملا تھا اور کرایا گیا تھا جن کے ماتحتی، وہ میرے سگے خالو تھے جن کو آپ جانتے ہیں نعمان حاجی کے نام سے، جو اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ نکاح کے سلسلے میں ہے۔ ایک گھنٹہ تک ٹھیک۔ میرے بھائیوں، نکاح اسلام میں کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، حرام ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ نکاح سنت ہے، لیکن میں کہتا ہوں علماء استدلال کرتے ہیں کہ نکاح فرض بھی ہے اور نکاح حرام بھی ہے۔ نکاح کن کے لیے فرض ہے، کن کے لیے حرام ہے؟ میں آپ کو صرف دو ہی چیز بتا رہا ہوں۔ کوئی انسان جوان ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم بغیر نکاح کے گنہگار ہو جائیں گے، ہم زنا کر بیٹھیں گے، ہم سے غلطی ہو جائیں گی، تو اس کے لیے نکاح کرنا میرے بھائیوں فرض ہے۔ لیکن جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مردانہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے، اگر وہ کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے میرے بھائیوں تو یہ چیز حرام ہے، ان کے لیے نکاح حرام ہو جائے گا۔ شرمیلی بات آپ کو لگ سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے اس مسئلے کی وضاحت کرنا۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نکاح کی صحیح عمر کیا ہے، ہم اور آپ کس سال میں، کس عمر میں نکاح کریں؟ ویسے تو گورنمنٹ سرکار پابندی لگائی ہے کہ لڑکی کی عمر 16 سال ہو اور لڑکے کی عمر 18 سال ہو۔
یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں، لیکن اسلام کی نظر میں نکاح کا صحیح وقت جو ہے آپ کو مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھانے کی ضرورت خود اس کو محسوس ہوتی ہے، پانی پینے کی ضرورت اس کو خود محسوس ہوتی ہے۔ کوئی انسان اسے بتلانے والا نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں کھانے کی ضرورت کب ہے، تمہیں پانی پینے کی ضرورت کب ہے۔ اسلام میں تیسری چیز کی اہمیت وہ نکاح خواہش نفسانی ہے۔ انسان اس چیز کو خود بخود احساس کر سکتا ہے کہ ہمارے نکاح کا وقت کیا ہے، صحیح عمر کیا ہے، صحیح وقت کیا ہے، اس چیز کا وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو قرآن کی ایک آیت سے سمجھا رہے ہیں، دنیا میں آپ کو شراب پینے کی اچھا ہوئی، شراب پینے کا من ہوا، شراب پینے کی خواہش ہوئی، لیکن قرآن کریم کی آیت یاد آئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے خواہش کو غلط چیزوں سے کنٹرول کر رکھے، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، وہ انسان شراب پینے سے رک گیا، وہ انسان زنا کرنے سے رک گیا، وہ انسان دنیا میں کسی چیز کی چاہت ہوئی اس چیز کو کرنے سے رک گیا۔ لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے، پانی ایک ایسی چیز ہے، کھان پان ایک ایسی چیز ہے جو اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں ہم اور آپ بہت چیزوں کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اس چیز سے اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ ہم نے سود کھانے کا ارادہ کر لیا، لیکن قرآن کریم کی آیت یاد آئی، اللہ کا خوف یاد آیا، ہم اس چیز سے باز آ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، کھانا ہمیں کھانا ہی پڑے گا، پانی ہمیں پینا ہی پڑے گا، اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ خواہش نفسانی ہے، وہ انسان کی خواہش ہے۔ تیسری چیز انسان کی خواہش ہے۔ اس لیے نکاح کا اگر صحیح وقت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان کی صحیح عمر کیا ہے، صحیح وقت کیا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ ان کا جواب خود ان کے پاس ہے۔ جس طرح بھوجن کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا ہے، وہ خود اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نکاح کرنے کا صحیح وقت انہی کو پتا ہوتا ہے۔ اب آئیے حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوان کی جماعتوں، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، کھانا کھلانے کی طاقت ہو، ان کو چاہیے کہ فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے۔ اللہ رب العالمین یہاں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ چاہے تو بچوں سے بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو بوڑھوں سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہاں اسی سے خطاب کر رہا ہے جن کے پاس طاقت ہے۔ حالانکہ اسلام میں نابالغ بچے اور بچی کا نکاح بھی جائز ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسی سے خطاب کر رہا ہے۔ نبی اکرم اسی کا جملہ دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو تم میں سے جوان ہیں، اے نوجوانوں کے گروہ، جن کے پاس طاقت ہے وہ شادی کر لے۔ اور اللہ رب العالمین بھی قرآن میں فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، کسی زور نہیں ڈالتا، لیکن ہاں جن کا ان کے پاس طاقت ہے، جتنے ان کے پاس استطاعت ہے، جتنی ان کے پاس طاقت ہے، طاقت بھری اللہ رب العالمین اسے زور ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے۔ تو یہاں نوجوانوں سے خطاب کیا گیا ہے، نوجوان کے گروہ جن کے پاس طاقت ہے وہ شادی کریں۔ اسلام میں اگر نابالغ لڑکے اور لڑکی کی شادی کرا دی جائے، ان کا نکاح کرا دیا جائے تو نکاح ہو جائے گا میرے بھائی، لیکن جوانوں سے خطاب کر رہا اللہ رب العالمین۔ ہاں
निकाह करने का मकसद बता रहा है, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। निकाह इंसान अगर कर लेता है, उनकी आंख नीचे रहती है, उनकी आंख नीची हो जाती है, वो नजरों से महफूज हो जाते हैं मेरे भाइयों, और वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी शर्मगाह महफूज रहते हैं। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम। हाँ, अगर आपके पास खिलाने की ताकत नहीं है, आपके पास वसअत नहीं है, तो आप रोजा रखिए, इसलिए कि फ़इन्नस्सौम लहू बिजाउन, ये रोजा तुम्हारी ख्वाहिश को तोड़ देता है। जब इंसान रोजा करता है, गलत राहों में जाने से बच जाता है, गुनाह करने से बच जाता है, उनका कदम गुनाहों की तरफ नहीं जाता है। तो पता चला कि हमें और आपको निकाह करने की सही उम्र क्या है और किसे करना चाहिए, किसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीद की, नबी अकरम ने सुनाया है इसका फरमान। अब निकाह किस औरत से करे? तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, औरत से 4 चीजों के बिना पर शादी की जाती है, औरत से 4 चीजें देखी जाती है, औरत के अंदर 4 खूबियां देखी जाती है। लिमालिहा, उसका माल देखा जाता है, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, उसका हुस्न देखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, वली हसबिहा, उसका हसब नसब देखा जाता है, वली दीनिया, और उसकी दीनदारी देखी जाती है मेरे प्यारे साथियों। यहूदी माल देखकर शादी करते थे, माल को तरजीह देते थे, ईसाई हुस्न जमाल को तरजीह देते थे, अरब हसब नसब को तरजीह देते थे। ज़माने जाहिलियत में अरब हसब नसब को तरजीह देते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन, आए मेरे सहाबा, आए मेरी जमातों, आए मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोग दीनदार रिश्ते को तरजीह दो, दीनदार औरत को तरजीह दो। दीनदार औरत से शादी करनी चाहिए, दीनदार औरत से निकाह करना चाहिए मेरे भाई। यहूदी किसी औरत के घर में माल देखा, उनको तरजीह दिया। ईसाई किसी का हुस्न जमाल देखा, कोई औरत खूबसूरत है, कोई लड़की खूबसूरत है, उसको तरजीह दिया। ज़माने जाहिलियत में अरब के रहने वाले अरबी लोग हसब नसब को तरजीह देते थे। आपने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन, आए मेरे सहाबा, आए मेरी जमात के लोगों, आए मुसलमानों, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो, दीनदार रिश्ते को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फन्किहूहु। ऐ लोगों, जब तुम्हारे घर में दीनदार रिश्ता आए, तुम्हारे घर में दीनदार रिश्ता आए, जिनको तुम पसंद करते हो, उनके साथ अपनी बहन का निकाह करा दो, उनके साथ अपनी बेटी का निकाह करा दो। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जान लो, तकुन फिल अर्ज़ि तकुन फितनतुन फिल अर्ज़े, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, वह फसादुन कबीर, और बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। इस हदीस से पता चला कि हमें और आपको दीनदार रिश्ता ढूंढना चाहिए, दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए मेरे भाइयों। एक सहाबी है जिनका नाम जुलैबीब है, ये शक्ल से बदसूरत थे, इनका चेहरा ठीक नहीं था, ये बदसूरत थे, इनका चेहरा काला था, इनका जिस्म काला था, लेकिन ये नबी की सोहबत में रहा करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे और नबी भी इनसे मोहब्बत करते थे मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक मर्तबा हाजिर है, आपने जुलैबीब की तरफ देखा और पूछा, आए जुलैबीब अला ततज़व्वज, आए जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? आए जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? जुलैबीब ने कहा, आए अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे बदसूरत इंसान से कौन शादी देगा? मेरी शक्ल काली है, मेरा चेहरा काला है, मेरा जिस्म काला है, मैं मुफलिस हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे पास ना माल है, ना सूरत है, ना दौलत है, ना खजाना है, ना कुछ है। आए अल्लाह के रसूल, मुझसे अपनी बेटी का निकाह कौन कराएगा? मुझसे अपनी बहन का निकाह कौन कराएगा? मुझसे कौन सी लड़की शादी करेगी? अल्लाह के रसूल,
आप अपनी निगाहें नीचे कर लिए, दोबारा पूछता है कि ऐ जुलैबीब, क्या तुम शादी नहीं करोगे? जुलैबीब का वही जवाब, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे कौन शादी करेगा? फिर तीसरी मर्तबा आपने पूछा है जुलैबीब, क्या शादी नहीं करोगे? जुलैबीब का वही जवाब। आपने फरमाया, ऐ जुलैबीब, जाओ मदीने के अंदर एक अंसारी औरत के घर में जाओ, एक अंसार के घर में जाओ, वहां एक दीनदार औरत है, खूबसूरत लड़की है, उनके पास जाओ। दीनदार लड़की है, खूबसूरत लड़की है, उनके घर जाओ। जुलैबीब सोचने लगे, दीनदार लड़की है, खूबसूरत लड़की है, वो मुझसे कैसे शादी करेंगे? उनके घर वाले मेरे साथ शादी कैसे देंगे? लेकिन आपने फरमाया, ऐ जुलैबीब जाओ और कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे घर वालों को सलाम कहा है। उसके बाद कहना कि मेरे साथ शादी दिलाने के लिए भी कहा है। जुलैबीब खुशी खुशी उनके घर जाते हैं, उनके घर में जाकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको सलाम कहा है, तुमको सलाम कहा है। सब लोग खुशियों में झूम जाते हैं, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर में गम में तब्दील होने वाली है। मेरे भाइयों, जुलैबीब ने उस घर में कहा, उस घर वाले से कहा, ऐ फला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। थोड़ी देर के लिए खुश हुआ कि अल्लाह के रसूल ने हमें सलाम भेजा है। फिर सोचने लगी कि अल्लाह के रसूल ने मेरी बेटी के साथ तुम्हारा निकाह, वो कैसे? मन मन में सोचने लगे, ऐ जुलैबीब, तुम तो काले हो, तुम्हारी शक्ल काली है, तुम्हारा चेहरा काला है, मेरी बेटी तो हुस्न और जमाल में एकता है, फिर कैसे मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करा दूं? ऐ जुलैबीब, तुम रुको, मैं अपनी अहलिया से, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूं। वो घर गए और अपनी बीवी से मशवरा किए कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म देकर भेजा है, अल्लाह के रसूल ने कहकर भेजा है कि तुम जुलैबीब के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। ऐ मेरी बीवी, बताओ क्या करें? बीवी कहने लगे, ऐ मेरे शौहर, जुलैबीब काला है, उनकी शक्ल काली है। ऐ मेरे शौहर, जुलैबीब तो गरीब आदमी है, उनके पास ना माल है ना दौलत, उनके पास कुछ नहीं है, फिर कैसे ये मुमकिन है कि मैं उनके साथ अपनी लाडली बेटी का निकाह कर दूं? लेकिन मेरे भाइयों, दीनदार लड़की की पहचान देखिए, वो लड़की पर्दे में थी, उनकी बेटी पर्दे में थी, पर्दे से सारी बातों को सुन रही थी। आवाज दी कि आए मेरी माँ, आए मेरे वालिद, आए मेरे अब्बू, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने उसे भेजा है, तो फिर आप लोग कौन होते हैं? अतुरीदूना, आप लोग कौन होते हैं? अंतरुद्दू, कि तुम अला रसूलिल्लाहि अमरहु, अल्लाह के रसूल के हुक्म को टाल दो, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के रसूल के हुक्म को टाल दो। आप लोग कौन होते हैं? अगर अल्लाह के रसूल ने कहा है कि इस काले इंसान से शादी कर लो, इस गरीब आदमी से शादी कर लो, इस बदसूरत इंसान से शादी कर लो, तो मैं तैयार हूं। मेरे भाइयों, जुलैबीब वहां से मायूसी होकर चलने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो इंसान, उस लड़की का बाप अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, आए अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी तैयार है, मेरी बेटी राजी हो गए, आपका हुक्म है, आपके हुक्म को वो मान लिए। अल्लाह के रसूल ने बरकत की दुआ दी और कहा, ऐ फला, उन दोनों घराने में बरकत हो, उन दोनों के दरमियान बरकत हो। फिर अंसारी औरत में, अंसारी इलाके में एक और घर आबाद हो गया, और मुअर्रिख लिखते हैं कि उसका घर अंसारी औरत में सबसे ज्यादा खर्चीला हो गया। मेरे भाइयों, इतने माल हुए, इतने दौलत उसके घर में फले फूले कि उसका घर सबसे ज्यादा खर्चीला हो गया। तो हम और आप किसको तरजीह देते हैं? माल देखकर शादी करते हैं, हसब और नसब देखकर शादी करते हैं, लेकिन उस जमाने को याद करो, वो लोग दीनदारी को तरजीह देते थे।
आज के दौर में हम और आप किसी की दीनदारी नहीं देखते हैं, किसी के अंदर दीन नहीं देखते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा खतबा इलैकुम, जब तुम्हें कोई निकाह का पैगाम दे, मन तरज़ाउना दीनहु, जिनका दीन तुम्हें पसंद हो जाए, जिसका अखलाक तुम्हें पसंद हो जाए, फज़व्विजूहु, तो तुम उनके साथ अपनी बहन बेटी का निकाह करा दो। इल्ला तफालू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, वह फसाद मारीज, और बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। हम और आप दीनदार रिश्ते को तरजीह नहीं देते हैं। आपको बताऊं, एक मर्तबा किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। ये लड़का बेचारा गरीब था, लेकिन जब लड़के और लड़की से प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, तो लड़की ने अपने अब्बू को बताया और कहा अब्बू फला लड़के से मेरा प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, क्या आप उनसे मेरा निकाह कराना पसंद करेंगे? क्या आप उनसे मेरी शादी दिलाना पसंद करेंगे? बाप ने कहा मेरी बेटी एक शर्त है, उस शर्त के साथ मैं तुम्हारा निकाह कराऊंगा। होने वाले दामाद को मेरे घर में बुलाओ, देखना चाहूंगा कि उनकी हैसियत कितनी है। इस लड़की ने फोन पर अपने होने वाले शौहर को बतलाया, क्या है मेरे होने वाले शौहर, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप मेरे घर आइए, ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश है। मेरे अब्बू देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी वुसअत है। अगर आपकी वुसअत उन्हें पसंद आ जाए, आपकी ताकत और मालदारी उन्हें पसंद आ जाए, तो ही आपके साथ वो निकाह कराएंगे, वरना नहीं। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उस लड़के ने कहा कि आपके अब्बू से कह देना कि वो किसी गरीब के घर नहीं आता है। मेरे भाइयों, यानी होने वाले ससुर ने दामाद की ताकत देखना चाहा, इस्तिताअत देखना चाहा, मालदारी देखना चाहा। लड़के भी बड़े होशियार थे, उसने कह दिया कि तुम बता देना कि वो किसी गरीब के घर नहीं आता है। तो मेरे भाइयों, हम और आप मालदार को तरजीह देते हैं, हसब व नसब को तरजीह देते हैं, दीनदार को तरजीह नहीं देते हैं। हालांकि दीनदार औरत को तरजीह देना चाहिए। मेरे भाइयों, नेक बीबी अगर घर में आएंगी तो आपके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मदद करेंगी। हाँ सुनिए, अब हमने मान के चलिए दीनदार औरत को तरजीह दे दिए, लेकिन शादी का सिस्टम क्या होना चाहिए, शादी की रस्में क्या होनी चाहिए, उनका रिवाज क्या होना चाहिए, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। शादी इस्लाम में देख कर करनी चाहिए। जो लड़का शादी करेगा उसे चाहिए कि अपने होने वाली बीबी को एक नजर देख ले, लेकिन माशरे में इसको ऐब समझा जाता है। कोई लड़का अगर डायरेक्ट देखने चला जाए तो उसे लोग बेवकूफ समझते हैं और ऐब समझते हैं कि लड़का खुद ही देखने के लिए आए। एक सहाबी थे जिनका नाम मुगीरा इब्न शुअबा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और आपने पूछा, आपसे कहा, आय अल्लाह के रसूल, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी के लिए एक लड़की को पैगाम दे रहा हूँ, निकाह का पैगाम दे रहा हूँ। आपने फरमाया, आय मुगीरा, क्या तुमने उस लड़की को देखा है, क्या अपने होने वाली बीबी को देखा है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया, इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ उनके घर जाओ और उस होने वाली बीबी को एक नजर अपनी आंखों से देख लो। तो इस हदीस से पता चला, इस वाक़े से पता चला कि अपनी होने वाली बीबी को एक नजर देखना चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत मुगीरा उसके घर जाते हैं और एक अंसारी औरत से मुलाकात करते हैं और उस अंसारी औरत से कहते हैं कि मुझे उस लड़की को एक बार देखने का मौका दिया जाए, एक बार देखने दिया जाए ताकि मैं उनसे देख लूं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। वो अंसारी औरत जाती है और उनके माँ बाप से कहते हैं, क्या है फला, तुम्हारी बेटी को देखने के लिए मुगीरा आए हैं, तुम्हारे होने वाले दामाद आए हैं। लेकिन मुगीरा इब्न शुअबा ने देखा
कि उनके माँ बाप इस फैसले से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि हम अपनी बेटी को दिखाएं। मेरे भाइयों, यहाँ तो अगर थोड़ी सी बात अगर भनक भी अगर लग जाए कि इनके साथ शादी होने वाली है तो साला साल फोन पर बातें चल रही है। माँ अपनी बेटी से बात करा रही है होने वाले दामाद से, ये सिस्टम है। और वहां एक मर्तबा देखने के लिए गए तो फिर भी वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन वो लड़की पसे पर्दा ये तमाम मंजर देख रही थी और वो समझ गई। तो उसने कहा, आए मुगीरा, आए मेरे होने वाले शौहर, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अगर नबी ने तुम्हें भेजा है, मैं तुम्हें कसम देती हूँ, अगर नबी ने भेजा है तो तुम मुझे एक मर्तबा देख लो, अगर नहीं हुक्म दिया तो तुम मुझे मत देखो। मुगीरा कहते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था इसलिए मैंने उसे एक नजर देख लिया, मैंने उसे एक नजर देख लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चीज से पता चला कि अगर हम किसी से शादी करें तो उनको एक मर्तबा देख ले। मेरे भाइयों, अब हम उसको देख भी लिए, अब शादी होने वाली है, अब शादी होने वाली है। शादी से पहले 2-3 दिन पहले ही हल्दी की रस्म होती है जो इस्लाम में जायज नहीं है। हल्दी की रस्म हमारे शेरशाहबादी कौम के अंदर किसी की यहाँ तो हफ्तों तक चलती है, किसी की यहाँ 3 दिनों तक चलती है। हल्दी लगाई जाती है, लड़कियों को आपस में सहेलियां, लड़की को आपस में सहेलियां लगाती है, लड़कों को उनके भाभी लगाते हैं, उनके फूफू लगाते हैं, उनके बहन लगाते हैं, देगर औरतें उनको हल्दी लगाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में ये चीज जायज नहीं है, हल्दी लगाना जायज नहीं है और ये परंपरा हमारे इस्लाम में नहीं है। ये तो हिंदू मजहब की परंपरा है, ये तो हिंदू मजहब की रस्म है मेरे भाइयों, और ये रस्म हिंदू मजहब से ली गई है। इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। कुछ लोग अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला देते हैं और इस्तिदलाल करते हैं कि उनके कपड़ों में सर्द रंग ज़ाफ़रान का रंग लगा हुआ था। लेकिन मेरे भाइयों, ये दलील सही नहीं, ये इस्तिदलाल सही नहीं है, इसलिए कि उनके कपड़ों में सर्द रंग लगा हुआ था। हो सकता है उस जमाने में औरतें खुशबू इस्तेमाल किया करती थी, औरतें पीले रंग का इस्तेमाल किया करती थी, उनकी बीबी का रंग उनके कपड़ों में लग गया होगा। अगर उनके बदन में लगा हुआ होता तो हम ये इस्तिदलाल कर सकते थे, लेकिन हाँ, इस चीज से इस्तिदलाल नहीं हो सकता है। इस्तिदलाल नहीं कर सकते कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े में, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े में ज़ाफ़रान लगा हुआ था तो हम भी अपने होने वाले शादियों में अपने लड़कों का, अपने भाइयों का या खुद के जिस्म में हल्दी लगाएं, मेहंदी लगाएं। पहली बात कि मर्दों के लिए ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना जायज ही नहीं है मेरे भाई। अगर लड़कियां लगाना चाहे हल्दी तो फिर वो खुद इस्तेमाल करेंगी, सहेलियां उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये चीजें हो गई। अगर इन तरीकों से मेरे भाइयों शादी होगी तो उस शादी में बरकत होगी, लेकिन हमने अगर शुरू ही से काम गड़बड़ सरबर करता रहा, नाजायज तरीकों से शादी करते रहे, इनकी रसूमात को निभाते रहे, तो उन शादी में बरकत नहीं होगी। और ये रस्म आई कहां से हल्दी की? सहाबा के दौर में नहीं थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रसूमात नहीं निभाए जाते थे। यह हिंदुस्तान की परंपरा है। हिंदू धर्म की किताब के अनुसार जब भी कोई शुभ काम किया जाता है, कोई अच्छा काम किया जाता है, शुभ कार्यों को किया जाता है, शुभ काम, तो भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और उसकी पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में ये हल्दी जो है ये विशेष महत्व है। तो धार्मिक मान्यता अनुसार ये जो हल्दी है मेरे भाइयों, उनके अकीदे के मुताबिक दूल्हा और दुल्हे को नजर बद से बचाए जाने के लिए वो लोग हल्दी रस्म
इख्तियार करते हैं। लेकिन इन परंपराओं को मुसलमानों ने भी शुरू कर दिया है मेरे प्यारे साथियों, जो इस्लाम में जायज नहीं है। हाँ, इस्लाम की ये परंपरा नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं शादी के मौके पर जहेज की भी रसूमत इस्लाम से ली गई है, और जहेज फातिमा से इस्तेदलाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को जहेज दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बड़ी साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज में हार दिया हजरत खदीजा के। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों से इस्तेदलाल करना जायज नहीं है। इन चीजों से इस्तेदलाल करना जायज नहीं है। अगर हमने जायज तरीके से शादी करके लिया है तो मेरे भाइयों यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ लोगों, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीबियां बनाए, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीबियां पैदा किए, इसलिए कि तुम उससे सुकून हासिल करो, इसलिए कि तुम उससे ठंडक हासिल करो। और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दिए, उल्फत कायम कर दिए, उसने तुम्हारे दरमियान रहमत कायम कर दिए, उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत कायम कर दिए, उल्फत कायम कर दिए, रहमत कायम कर दिए। मेरे भाइयों, कैसे उल्फत कायम किए? मुफस्सिरीन लिखते हैं शुरू में जब नौजवान शादी करके लाता है, शुरू में नौजवान शादी करके लाता है, शादी होती है, मियाँ बीबी आपस में मोहब्बत करते हैं, वो बीबी शौहर से मोहब्बत करती है, शौहर बीबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हाँ, जब वो जवानी की पीरियड को खत्म कर देते हैं, गुजर देते हैं, जवानी की पीरियड खत्म हो जाती है, बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाते हैं, फिर भी एक दूसरे के ऊपर रहमत की नजरों से देखते हैं। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कोई 50 साल की उम्र में पहुंच गया, कोई बुजुर्ग 50 साल की उम्र को हो गए और उनकी बीबी मर गए। उस इंसान से जाकर पूछिए एक बीबी की कीमत क्या है, एक बीबी का एहसास क्या है, एक बीबी का दर्द क्या है। हालांकि मेरे भाइयों, उनके अंदर जवानी नहीं है, उनके अंदर ख्वाहिश नहीं है, फिर भी शौहर अपनी बीबी की तरफ देखता है और बीबी अपने शौहर की तरफ देखता है। इसी चीज को रहमत कहा गया है, इसी चीज को रहमत कहा गया मेरे भाई। लेकिन जब दीनदार बीबी आएंगे, सहाबा ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, अल्लाह के रसूल कोई बेहतर अमल बताइए, कोई बेहतर काम बताइए जिसको करने के बाद हम अपने किरदार को अच्छा बना ले, हम अपने अखलाक को संवार ले, जिसको करने के बाद हम अफजलियत का दर्जा हासिल कर ले, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। आपने फरमाया आए मेरे सहाबा, आए मेरे सहाबा, कल्बुन शाकिर, आए मेरे सहाबा जिसका शुक्रगुजार दिल हो, वह ज़ौजतुम मुमिनतुन, और जिसकी ऐसी मोमिना बीबी हो, ऐसी बीबी हो तुईनुहु, जो उनकी मदद करे, जो उनकी मदद करे उनके ईमान को, अला ईमान ही, ईमान को पुख्ता तर बनाने में। अगर बीबियां हमारी नेक होगी तो मेरे भाइयों आपको दीनदार और ईमान के रास्ते में चलने की दावत देगी। अगर बीबियां नेक होगी, हदीसों में कहा गया है अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइ दुनिया, दुनिया सामान है और दुनिया की बेहतरीन सामान अलमरअतु सालिहा, नेक बीबी है। दुनिया सामान है और दुनिया की बेहतरीन सामान और सबसे बेहतरीन सामान वो आपकी नेक बीबी है मेरे भाई। तो बीबी से कैसा बर्ताव करना चाहिए? कुरान कहता है वह आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों तुम बीबियों के साथ बूदोबाश तरीके से पेश आओ, अच्छे तरीके से पेश आओ। ये मत सोचो कि हम जो चाहे खा लिए, जो चाहे पी लिए और बीबी को मारते रहे, बीबी को सताते रहे। नहीं नहीं, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह की कसम बीबियां रहमत है, बीबियां आपके घर में बरकत लेकर आती है। आप बीबियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। मेरे प्यारे साथियों, बीबियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। जब आप बीबियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे वो आपके घर को अच्छा रखेंगे। हाँ, अगर बीवी के अंदर कुछ चीजें आपको खराब लगे उसको नजरअंदाज कर दीजिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत को, किसी मोमिन को अलग ना करे, उनसे जुदाईगी इख्तियार ना करे। इन करिहा मिनहा खुलुकन व रज़िया मिनहा आखर, अगर उनकी कोई आदत तुम्हें खराब लगे, उनकी कोई खसलत तुम्हें खराब लगे, तो जरूर है उनकी कोई खसलत तुम्हें अच्छी भी लगेंगे। मसलन बीवी अगर खाना बनाने में कमजोर है तो आपके कपड़े धुलने में अच्छे होंगे, आपके बच्चों की तरबियत करने में अच्छे होंगे, आपके घर को संभालने में अच्छे होंगे। इसलिए बीवियों की अगर कुछ आदत तुम्हें खराब लगे तो कुछ जरूर अच्छे लगेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, एक शौहर आइडियल शौहर बनिए और अपनी बीवियों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, अपने अहलवायाल में अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए लोगों तुम अपने घरों में अच्छा बनने की कोशिश करो, अपने अहलवायाल में अच्छा बनने की कोशिश करो। तुम ये सोचो कि हम अपने घर में अच्छा बने। अपने घर में अगर अच्छा बनेंगे तो जाहिर सी बात है आप दूसरों के वहां भी अच्छा बनेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं मोहल्ले में जाएंगे तो नरमी से पेश आएंगे, लेकिन घर में आएंगे तो बुरी नजर से पेश आएंगे, उनकी हरकतें बुरी होंगी, उनकी नजर गलत होंगी, वो अपनी बीवियों पर चिड़चिड़ापन करेंगे, अपने बीवियों को मारते रहेंगे, अपने बच्चों को सताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक मिसाली शौहर की ये पहचान नहीं है, एक मिसाली शौहर की ये पहचान नहीं है। बीवियों का तो हक ये है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तकुल्लाह फिन निसा, आए लोगों तुम औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो, औरतों के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरते रहो, इसलिए कि तुमने उसे अल्लाह की अमान में हासिल किया है, अल्लाह की अमान में लिया है। वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने उनकी शर्मगाह को अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर हलाल किया है, तुमने उनकी शर्मगाह को अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर हलाल किया है। दो औरत खड़ी है, दो औरत आपके पास है, लेकिन आपने अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर एक को हलाल नहीं किया है। आप उनके साथ खेल नहीं सकते हैं, आप उनके साथ जिमा नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो जिना होगा, आपसे गुनाह होगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर किसी औरत से आपने अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर उनकी शर्मगाह को हलाल किया है, ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम उस औरत से अल्लाह के सिलसिले में डरते रहो, तुम डरो अल्लाह के उस औरत के सिलसिले में मेरे भाइयों, इसलिए कि तुमने उसको अल्लाह के अमान के जरिए से हासिल किया है। हाँ, और तुम्हारा भी हक ये है कि तुम जिसको नापसंद करते हो कि तुम्हारे बिस्तर में आए, तुम्हारी बीबी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसको तुम्हारे बिस्तर पे आने ना दे, उसको तुम्हारे बिस्तर पे ना आने दे। हाँ, और तुम्हारा भी हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पे आने ना दे, और तुम्हारी बीवी का हक ये है अगर वो आने भी दे, अगर कोई वो गलत काम भी करे तो तुम उसको मारो जायज है, लेकिन इतना मार ना मारो, इतनी लाठी ना चलाओ, इतने डंडे ना चलाओ कि उनके जिस्म में निशान पड़ जाए, उनके जिस्म में दाग हो जाए, इतना ना मारो कि उनके जिस्म में दाग हो जाए। मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो तुम खाना खाओ, जिस मायार का खाना खाओ वो अपनी बीबी को खिलाओ। वतखसूहा इदक तसईता, और जो कपड़ा तुम पहनो, जिस मायार का कपड़ा पहनो वो अपनी बीबी को भी पहनाओ। वला तुकब्बि, और बीबी को गाली ना दो, बीबी को गाली गलौज ना बको। मेरे प्यारे साथियों, अगर कुछ उनसे गलतियां ही हो जाए तो मेरे भाइयों घर की बात घर में रखो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा उन्हें किसी दूसरी जगह में जगह ना दो, घर से बाहर ना कर दो, घर की बात घर में रहने दो, उसको बाहर ना करो। मेरे भाइयों, जरूरत पड़े मारो, हल्की मार मारो, लेकिन इतना ना मारो कि उनके जिस्म में दाग हो जाए। ये बीवी का आपके ऊपर हक है। हम और आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ही हक है, हमारे ही पैर दबाते रहे, हमारा ही सर दबाते रहे, नहीं, बीवी का भी हक है। वलहुन्ना मिस्लुल लदी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। मेरे भाइयों, आपका जिस तरह बीवी पर हक है, बीवी का भी हक आप पर, बीवी का भी हक आपके ऊपर है। हाँ, किसी ने लिखा एक दर्जा आपका ज्यादा हक है, एक दर्जा
दर्जा, वो क्या है? वलिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, एक दर्जा आपके ऊपर ज्यादा हक बनता है। वो हक ये है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, ऐ मर्दों की जमातों, तुम औरतों पर हाकिम हो, तुम औरतों के ऊपर कव्वाम हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बाहर से खाना लाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम कमा कर लाओ। बीवियां घर में खाना पकाएगी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बाहर से कमा कर लाओ। तुम उनके ऊपर हाकिम हो, वो तुम्हारे ऊपर हाकिम नहीं है। ये फजीलत आपको हासिल है। आपकी परमिशन के बगैर वो मस्जिद तक नहीं जा सकती है। इतना आपके ऊपर, आपका हक इतना उनके ऊपर है कि आप अगर इजाजत दें तो ही वो मस्जिद जा सकती है। आपकी परमिशन के बगैर वो नफली रोजा भी नहीं रख सकती है। आप अगर परमिशन देंगे तो वो नफली रोजा रखेंगे। मेरे भाइयों, आप इजाजत देंगे तो वो मस्जिद में नमाज अदा करने जाएगी। इतना आपका भी हक है, उनका भी हक है, दोनों का हक बराबर है, लेकिन आपका ज्यादा है इसलिए कि आप हाकिम हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि मिसाली शौहर बने, लेकिन औरत को भी चाहिए कि वो आपकी इताअत करें, आपकी फरमाबरदारी करें। मेरे प्यारे साथियों, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कोई औरत अगर 5 वक्त की नमाज अदा करे, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। व सामत शहरहा, और रमजान महीने का रोजा रखता रहे। व इताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करें। ऐसी औरतों से आवाज दी जाएगी, कल क़यामत के दिन कहा जाएगा, पुकारा जाएगा, क़ील अदखुलिल जन्ना, ऐ औरतों दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। माशीते मिन अय्यि अबवाबिल जन्ना, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। किन औरत से कहा जाएगा? जो औरत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करे, रमजान महीने का रोजा रखता रहे, और अपने शौहर की इताअत करे, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी औरत से कहा जाएगा कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ जिस दरवाजे से कहो। लेकिन आपको भी चाहिए कि आप अपने बीवियों के नजर में अच्छा बने, जिस तरह अल्लाह के रसूल थे। आपने हदीस के अंदर फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं अपने परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा हूं। तुम भी कोशिश करो कि अपने परिवार में, अपने कुंभों में, अपने कबीलों में अपनी बीबियों के नजर में अच्छा बनो, अपनी बीबियों के नजर में, अपने खानदान में अच्छा बनने की कोशिश करो। मैं तो अपने परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिसाली शौहर की पहचान देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास होते हैं। हजरत आयशा हालत हैज में हुआ करती है, पीरियड में हुआ करती है, लेकिन मेरे भाइयों, हजरत आयशा जिस गिलास में पानी पान करते हैं, उस गिलास को अपने होंठों तक ले जाते हैं। जिस जगह पे होंठ लगाते हैं, जिस जगह पे लब लगाते हैं, जिस जगह पे मुंह लगाते हैं, उसी जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह लगाकर पानी पिया करते हैं। उसी जगह पे आप पानी पिया करते हैं। उस जमाने में औरतें अगर पीरियड में हुआ करती थी, उसको लोग दूर रखते थे, उनका कमरा अलग कर दिया जाता था, उनके यहाँ अलग बर्तन दिया जाता था, अलग बर्तन में वो खाना खाया करती थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल का अखलाक देखिए, अल्लाह के रसूल का किरदार देखिए। जिस जगह पे हजरत आयशा होंठ लगाकर पानी पिया करती थी, उसी जगह पे आप मुंह लगाकर पानी पी लेते थे। ये एक मियाँ बीवी की पहचान है, एक मिसाली शौहर और मिसाली बीवी की पहचान है। मेरे भाइयों, आज के बाद से हम अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे।
टाइम खत्म होने जा रहा है। और जिस गोश्त को हजरत आयशा अपनी जबान से जिस बोटी को खाया करते थे, जो बच जाता था आप उसी जगह में मुंह लगाकर उसी गोश्त के बोटी को खाते थे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आज हम एक मियाँ बीवी की मोहब्बत को पहचान नहीं पाए हैं। इसकी वजह कि हमारे इन जहेज ने इन मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। ये कुर्बानी हमारे इन जहेज ने खत्म कर दिया है। ये मोहब्बत चली गई है, ये रहमत खत्म हो गए। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता रहा हूं इन जहेज ने हमें और आपको कहां से कहां पहुंचा दिया है। अल्लाह की कसम, आज इस महफिल में वादा कीजिए कि हम जहेज नहीं लेंगे। 3 भाई था, एक बहन थी, रिश्ता आया कि 5 लाख रुपया लगेगा। भाई बड़ा है, ये भाई सोचता है कि 5 कट्ठा जमीन है, अगर मैं बेचकर अपनी बहन का निकाह न कराऊं, मेरी बहन मुझे जिंदगी भर गाली देंगे कि मेरे भाई की वजह से मेरा निकाह नहीं हुआ है, अच्छे घर में मेरी शादी नहीं हुई है। बाप से कहता है, बाप ये जमीन बेच दो, इस जमीन को बेचकर बहन का निकाह करा दो। बाप जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। बाप ने जमीन बेच दी, बाप ने दुकान गिरवी रख दिए, बाप ने घर को किराए पे लगा दिया। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा हुआ, ये 2 भाई थे, 3 भाई थे, ये कॉलोनी छोड़ दिए, ये झारकाहा छोड़ दिए, ये चांदपुर छोड़ दिए, दिल्ली चले गए कमाने के लिए। घर में तो छोटे छोटे और भाई है। ईद का टाइम आया, उनके पास एक नया कपड़ा नहीं है, उनके पास एक नया कुर्ता नहीं है। ये बहन उस ईद के मौके पे घर आई, अपने शौहर को लेकर घर आए। 10,000 रुपया दिया जाता है, ससुर 10,000 रुपया देता है, फिर भी ये खुश नहीं होते हैं। ये जालिम शौहर खुश नहीं होते हैं, ये जालिम दामाद खुश नहीं होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस बहन ने अपने छोटे छोटे बच्चे पर गौर किया और छोटे छोटे बच्चे की तरफ देखा, कहने लगे, आए मेरे छोटे छोटे भाई, क्या तुम्हें नया कपड़ा नहीं मिला है, क्या तुम्हें नया कुर्ता नहीं मिला है। छोटे छोटे बच्चे जवाब देते हैं, आए मेरी बहन, क्या मैं बताऊं, मैंने अब्बू से कहा था कि नया कुर्ता दो, लेकिन अब्बू कह रहे हैं ये तो ईद उल फितर है, बकरीद जब आएगा तो तुम्हें नया कुर्ता दूंगा। इस बहन की नजर अपने बाप के जिस्म पर पड़ती है, अपने बाप के जिस्म के कपड़े के ऊपर पड़ती है। बाप एक फटी और पुरानी लुंगी पहनी हुई है, बाप से कहती है, ओ मेरे बाप, आपके पास फटी और पुरानी लुंगी है, ये ईद का टाइम है, ये त्योहार का टाइम है, आपके पास एक नई लुंगी नहीं है, आपने नई लुंगी क्यों नहीं ली है। बाप थोड़ी देर के लिए मुस्कुराती है और कहने लगे, बेटी ये लुंगी तो नहीं है, हालांकि लुंगी पुरानी है, लेकिन बाप मुस्कुरा दिया और कह रहे हैं, ओ मेरी बेटी ये लुंगी पुरानी, ये लुंगी नहीं है, ये मैं झाड़ी में गया था, झाड़ी से टकराने के बाद ये लुंगी फट गई है, लेकिन हालांकि लुंगी नहीं है, लेकिन वो लुंगी नहीं थी, फटी थी। उस बहन को पता चल गया, उस बेटी को पता चल गया कि मेरा बाप फकीर हो गया है, मेरा बाप गरीब हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, इन जहेज ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। वो बहन समझ गए, घर में खुशियां चली गई, बरकत खत्म हो गई, जल्दी जल्दी घर गए और अपने शौहर से जुदाई इख्तियार करना चाहे। क्या जालिम शौहर, डकैत शौहर, चोर शौहर, मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं। जो 5 लाख रुपया लिया था, ये शौहर समझ गए कि मेरे बाप ने खर्चा कर दिया। बाप से जाकर कहता है, बाप मुझे 5 लाख अभी चाहिए, मैं उनके घर में वापस करता हूँ। उनके बाप के यहाँ से खुशियां चली गई, उनके घर में बरकत चली गई। मेरे प्यारे साथियों, टाइम खत्म हो गया, मैं यही से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारिल्ला हमें और आपको एक मिसाली शौहर और मिसाली बीवी बनने की तौफीक अता फरमा, हमें इस्लाम के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमा और ऐसी शादी फरमा जो इस्लाम में जायज है, जिन शादियों में बरकत है, जिन घरों में खुशियां है, वैसी शादी हमें नवाज। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।